पर अगर 2013 में इसी तरह का संतुष्टि असंतुष्टि और कह नहीं सकते का सर्वे होता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के लिए, तो उनके 99%। This is Prakash Alo. I'm here to show you all the answers of UPSC which has been asked in 2015 and 16. I have written these questions by myself. Can you please recheck these questions? सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कांग्रेस ये सर्वे बताता है कि कांग्रेस पार्टी को एक 24 घंटे वाला अध्यक्ष चाहिए। इनमें से कौन होगा ये पार्टी तय करेगी, जो भी जिसको भी पार्टी तय करे, लेकिन वो 24/7 वाला अध्यक्ष होना चाहिए। Yeah, this questions. What is thalonomics? This is the term that was used in the economic survey this year in 2020. And what are the major findings of this year's economic survey with respect to food affordability? Discuss. I have written with these answers by myself. So can you please check this? जिस तरह से उनका फ्यूचर का विजन है, जिस तरह से पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, and can you please remark about what are the mistakes that was done by me? Can you please remark these? सुमित जी, कांग्रेस पार्टी देश की एक बड़ी पार्टी है। In India, rich musical heritage, Khayal and Thumri hold a prominent place. Explain about these. Means Khayal and Thumri are the musical heritage that has been played for a long time in India. So this is our heritage, and this should be established in the World Heritage, and this can be recognized by the government of India also. जिस तरह से आप लोगों ने सत्ता की व्यवस्था के लिए महाराष्ट्र की शिवसेना से हाथ मिलाया, उसी का नतीजा है कि So guys, करके मारता है। आपको यहाँ भी मारेगा, आपको पश्चिमी बंगाल में मारेगा, सब जगह मारेगा, क्योंकि जो सेक्युलर पॉलिटिक्स थी हमारे टाइम की, उसका स्कोप आपने खत्म कर दिया। बड़ी बात कह दी आपने उस बात। what are your views on recently enacted form of laws? In your opinion, what are the most important provisions therein? Substantiate your views. And this is my answer, wrote by me. Recently, 3 types of farm laws that was enacted by the Parliament: Farmers Protection of Trade and Commerce Act and Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance Farm Services Bill, Essential Commodities Bill. What should be their consequences, and why farmers are there in the Tehri border and on the road, and why they are blocking the roads? What are some limitations of these farm laws? So these all are elaborated by me in these sections, in these questions. यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में एक अच्छी नोक-झोंक चल रही है, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। दोनों सेक्युलर फ्रेमवर्क वाली पार्टी अपने आप को कहती आई है, जेडीयू भी और कांग्रेस भी, लेकिन आगे आंकड़े मुद्दों पर होंगे। कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर, कृषि बिल को लेकर कहाँ है सरकार की लोकप्रियता? ब्रेक के उस पर बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।
what introduces friction into ties between India and US is that Washington is still unable to find for India and position in its global strategy which would satisfy India's national self-esteem and ambitions. Explain with suitable examples. Means this question is asking that what are the relationship between India and US and why the US is not properly utilizing the potential of India. Means कि इंडिया जो है वो यूएस को सपोर्ट करता है हर ओकेजन पे, बट यूएस इज नॉट सपोर्टिंग इंडिया एज much as they can. That's why this question has been asked by the UPSC that what are the friction between India and US. That's why this question has been asked by UPSC, and this question has been written by me. The partnership of India and USA has been going for a long time in field of trade, economy, defense, strategically, but this partnership has not turned into strategic and multilateral due to various factors. Some of the issues that are there I have written in these questions. Yeah, this India's import oil from Iran. Actually, Iran is not the ally of USA. Means कि ईरान को USA को ईरान पसंद नहीं है, बट USA जो है वो चाहता है कि अगर मैं किसी से अच्छा रिलेशन बनाऊं तो, और अगर ख़राब रिलेशन बनाऊं तो, अगर मैं जिससे अच्छा रिलेशन बनाऊं तो वो कंट्री उस कंट्री के फेवर में ना हो. बट इंडिया फॉलो द नाम रूल, दैट मीन्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एंड दैट्स वाई इंडिया जो है वो हमेशा से चाहता है कि वो किसी भी कंट्री के फेवर में ना रहे, किसी भी कंट्री से के अगेंस्ट ना रहे, को एग्जिस्टेंशियली कोलेबोरेटली वो एक साथ काम करे. और लेकिन यूएस चाहता है कि इंडिया इंपोर्ट करता था ऑयल ईरान से एट लो प्राइस एंड वेनेजुएला से एट द चीपेस्ट रेट, बट यूएसए रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, ईरान से यू शुड नॉट इंपोर्ट द ऑयल एट दिस प्राइस. अरे क्यों भाई, जहाँ से मुझे प्रॉफिट होगा मैं तो वहीं से इंपोर्ट करूँ. तो ये फॉरेन पॉलिसी यूएस की है. और चाइना की क्या है कि वो डेब्ट ट्रैप में फंसाता है जितने भी देश हैं उनको लोन दे दे कि वो छोटे छोटे देश हैं जैसे कि मालदीव्स हैं, म्यांमार हैं, इन सब को डेब्ट ट्रैप में फंसा लेता है लोन दे दे के, जिससे कि वो लोन सदाते उसके क्या कहूँ, उसके वो हो जाते हैं, मतलब कि जो भी वो चाहता है वो करवाता है. जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में बात किया जाए तो चाइना जो है वो शो करना चाहता है कि इंडिया एज ए बिग ब्रदर, इंडिया इज शोइंग ऑल द नेबरिंग कंट्रीज एज ए बिग ब्रदर. मीन्स कि जैसे कि नेपाल हुआ जो कि छोटी छोटी कंट्रीज हैं इन द ज्योग्राफिकल सर्कमस्टांसेस, तो उसको इंडिया को एज ए बिग ब्रदर शो करवाना चाहता है. बट इंडिया शो करना चाहता है कि मैं एज ए बिग ब्रदर हूँ बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, बट मैं उस अनुसार से एज ए बिग ब्रदर ट्रीट नहीं करता हूँ कि वो डोमिनेट करे इन सारी जो भी कंट्रीज हैं, जो भी नेबरिंग कंट्रीज है. हमारे भूटान से तो अच्छा रिलेशनशिप है, फिर नेपाल से ऐसा रिलेशनशिप क्यों हो गया? बिकॉज नेपाल में जो केपी ओली हैं वो कम्युनिटी मतलब कम्युनिस्ट माइंड के हैं और जो चाइना है वो कम्युनिस्ट माइंडेड है. दैट्स वाई इंडिया और नेपाल जो है, इंडिया और नेपाल इन दोनों में कंपेनियनशिप जो था वो टूट रहा है. तो
चाइना जो है वो इसका फ़ायदा उठा रहा है। अभी मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी में अभी ब्रिज बन रहा था, तो नेपाल चाइना के कहने पे वो ब्रिज रोक दिया बनवाना कि नहीं, दिस एरिया इज इनसाइड माय रीजन एंड यू कांट मेक ब्रिज ऑन दिस रीजन। अब मवेशी वाली कांड हुई, बहुत सारी ट्रैफिकिंग होती है, बहुत सारी ट्रैफिकिंग जो होती हैं वो मधेसी जो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर एरिया पे रहते हैं, वो नेपालीज नहीं है, वो इंडियंस हैं जो कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर्स पे रहते हैं। तो वो उनकी ट्रैफिकिंग हो रही है, तो नेपाल कह रहा है कि नहीं, उनके ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, या ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है। लेकिन इंडिया तो कभी नहीं बोल रहा था कि मधेसीज की ट्रैफिकिंग हो रही है। तो इसलिए मधेसीज चाहते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर एरिया बनाया जाए इंडिया और नेपाल के बीच में फॉर द मधेसी, जो बहुत सालों से वहाँ रह रहे हैं, जो कि नेपाल नहीं चाह रहा है, बिकॉज ऑफ द सेपरेशन कहो या फिर ऑब्सेशन कहो या फिर कुछ भी कहो, बिकॉज ऑफ द चाइनाज डोमिनेंसी। अभी तवांग रीजन है, अभी अरुणाचल प्रदेश में तवांग रीजन है। अब चाइना चाहता है कि तवांग रीजन भी कैप्चर कर लिया जाए अरुणाचल प्रदेश में जो है, बिकॉज देयर इज नो एनी डिमार्केशन। LAC है वहाँ पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बट LAC is just an मीन्स इमेजिनरी लाइन, वो चाइना कहता है। बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर टाइम से वो जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो वहाँ पे मतलब कि बना हुआ है, और चाइना उसको डिमार्केटेड लाइन मानता ही नहीं है, उसको एज इमेजिनरी लाइन मानता है। दैट्स वाई वो हमेशा ही मतलब कि इंडिया के रीजन में आना चाहता है, आते रहता है, उसको वहाँ के जो इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स है उनको पुश आउट करता है। अभी हाल ही में 48 जो जवान हैं उनको पुश आउट, उनको कितने सारे को मारा गया, मतलब कि they all are killed brutally, and this is very shameful for the China कि वो कैसे किसी के एरिया में घुस के वो किसी के पुलिस फोर्स को मार रहा है। इसीलिए इंडिया जो है वो म्यांमार से रिलेशन अच्छा करना चाह रहा था, म्यांमार से अच्छा रिलेशन करना चाह रहा है थ्रू द ट्राइलैटरल हाईवे, बिकॉज कि अगर चाइना जो है वो तवांग रीजन ले लिया, बिकॉज वो LAC तो मांगता नहीं है, तो जैसे कि अक्साई चीन वाली एरिया है, वो पाकिस्तान ने चाइना को एज ए लीज दिया था और एज ए गिफ्ट दे दिया, जबकि वो तो हमारा एरिया है। अक्साई चीन वाला जो एरिया है वो मैं आपको मैप पे दिखाना चाहूँगी। मैप वैसे इसमें है नहीं है अभी फ़िलहाल अवेलेबल। तो जो चाइना की जो एक्सपेनिस्ट पॉलिसी है वो हमेशा अपने रीजन को, जैसे जिनजियांग रीजन जो है चाइना में, वहाँ पे बहुत सारे उइघुर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, वहाँ पे उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि वो वहाँ से पलायन करने के लिए, मतलब कि वहाँ पे वो एज ए टेररिस्ट ग्रुप काम करते हैं। वो सब नहीं देख रहा है चाइना, बस वो देख रहा है इंडिया में कौन टेररिस्ट ग्रुप, इंडिया में तो कोई नॉन स्टेट एक्टर्स है ही नहीं, बस इंडिया में तो बाहर से जो पाकिस्तान को जो मदद करते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, चाहे वो यहाँ के बिजनेसमैन हो, चाहे यहाँ के कोई पॉलिटिशियंस हो, वो लश्कर ताइबा हो या फिर जमाल जो भी हैं ये मुजाहिदीन, ये लोग जो हैं, ये लोग ना इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इंडिया में जो फॉरेन पॉलिसी है कि किसी दूसरे देश का अगर दूसरे देश से लड़ाई हो रहा है तो उसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू मतलब कि सुलझा दिया जाए। और
अभी यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1267 रिजोल्यूशन जो अभी पास हुआ, बहुत दिन पहले पास हुआ, उसमें इंडिया ने रखा था कि लश्कर तैयबा और तालिबान ने लश्कर तैयबा और मुजाहिदीन को एज ए टेररिस्ट ग्रुप कंसीडर कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं कंसीडर किया बिकॉज ऑफ द वीटो पावर ऑफ द चाइना। 5 लोगों को वीटो होती है, चाइना हर चीज़ में वीटो कर देता है। जब भी अगर इंडिया कोई बात रखता है, चाइना हर चीज़ में वीटो कर देता है। इस वीटो पावर के कारण ही ना वो परमानेंट मेंबरशिप चाह रहा है इंडिया यूएनएससी में। अदरवाइज यूएनएससी में इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस कारण से वो वीटो पावर उसे पहले ही मिल रहा था, जिस कारण से जवाहरलाल नेहरू जी जब थे उस समय उन्होंने मना कर दिया था कि वो वीटो पावर चाइना को दे दिया जाए बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। लेकिन अभी जो है रीजन, जैसे कि इंडिया में हाईएस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में आफ्टर चाइना है और सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी है। अप टू 2025 विथ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब बना लेगा इंडिया, मीन्स इमर्जिंग इकोनॉमी इंडिया है। तो उसका परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी में तो जो बात उन्होंने रखी है इंडिया ने, तो वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन कुछ वीटो पावर के कारण, बिकॉज ऑफ द वीटो पावर ऑफ चाइना, कुछ जो 5 लोग जो 4 लोग जो रिमेनिंग है जो सपोर्टिव है, वो भी नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं इंडिया को। इसलिए इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल पा रहा है। एक के बाद एक भूमि अधिग्रहण से लेकर एक के बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे। तो गाइस आज मैं बस इतने ही पढ़ा सकी, फिर मैं बाद में आप लोग को बताऊंगी जो फ्रेंड्स कुछ कहना चाह रहे थे कि आप क्या पढ़ती हो नहीं पढ़ती हो उसके बारे में बताओ। तो मैं ये इसी टाइप से मैं जो आज आईआर का कुछ लेक्चर्स मैंने थोड़े बहुत बताए हैं एज ए जेस्ट, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दिया करूँगी थोड़ा बहुत जो भी मेरे नॉलेज में आएगा। थैंक यू, बीते 20 दिन वो कहाँ थे? बाय बाय। संसद में प्रधानमंत्री नहीं है वो, क्या